हेलो डी स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚੈਪਟਰ 5। ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ MCQ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 5 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਥਿਊਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। तो आओ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਟਾਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो देखते हैं इस दे अंदर कंसेप्ट्स क्या है। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमिना दैट अकर एट द सरफेस। ठीक है ना, अजिहा कोई फिनोमिना जो किसी सरफेस ते हो रहा होवे। ठीक है ना, किसी कोई बॉडी के सरफेस के ऊपर, किसी लीफ के सरफेस के ऊपर, किसी डोर के सरफेस के ऊपर, किसी स्टोन के सरफेस के ऊपर, जिहड़ी सरफेस के ऊपर कोई फिनोमिना हो रहा है उसनों ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਐਂਡ ਕੋਲਾइड्स। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੈ ਜੋ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਕੋਲਾइड्स। तो सब तो पहला एडजॉर्प्शन क्या है? अकामुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल स्पीसीज एट द सरफेस रेदर दैन इन बल्क। किसी सरफेस के ऊपर कोई फिनोमिना होना ऊपर, ठीक है ना, नॉट इन बल्क। उसके थ्रोट अंदर तक कोई चीज ने एब्जॉर्ब नहीं होना। जिमें चौक नूं किसी स्याही के अंदर डुबोने असी तो स्याही डुबन तो बाद असीं तुरंत स्याही जो चौक बाहर कढ़ के तोड़ के देखते हैं तो उसके चौक के अंदर तक स्याही नहीं गई। अंदरों चौक वाइट है, बाहरों ठीक है वो नीला हो जाएगा थोड़ी दूर तक। तो ये देखते हैं कि वो जिन्नी दूरी तक गया उत्थे तक ये एडजॉर्प्शन फिनोमिना हो गया, बट नॉट इन बल्क। ये नहीं कि वो स्याही ये सेंटर तक चौक दे पहुंच गई होवे। ठीक है ना, तो इस करके असीं कह सकते भी जिहड़ा ये अकामुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल दा जमना सरफेस दे ऊपर नॉट इन बल्क किसी सॉलिड या लिक्विड दे विच इहनूं असीं एडजॉर्प्शन कह दिंदे हां। मॉलिक्यूल स्पीसीज और सबस्टेंस which concentrate or accumulate at the surface is termed as adsorbent, and the material on the surface of which the adsorption takes place is called adsorbent। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਹੀ ਨੇ ਜੰਮਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ that is एडजोरबेट, और जिस चीज के ऊपर एडजोरबेट हो रहा है that is adsorbent। Adsorption is essentially a surface phenomena. Solid, particularly in finely divided state, have large surface area and therefore charcoal, silica gel, aluminium gel, clay, colloids, metals in a finely divided state etc. act as good adsorbent। तो ये कह रहे कि ਜਿਹੜਾ ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਤੋਂ ਹੈ ਸੋਲਿਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਹੈਵ ਲਾਰਜ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਚੌਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੈਂਟਰੀ ਡੋਬ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਕ ਦੇ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਿਆਹੀ ਸੋਖ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਟ ਉਸੇ ਚਾਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਬਜ਼ੌਰਬੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਿਆਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। एग्जाम्पल है इन ए सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई से मिथाइलिन ब्लू। कोई यही ऑर्गेनिक डाई लिया, मेरा केमिकल का नाम है मिथाइलिन ब्लू। व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड एंड द सोल्यूशन इज वेल शेकन इट इज ऑब्जर्व दैट द फिल्टर टर्न्स कलरलेस। यानी कि ये चारकोल एक अजिहा काम करदा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਥਾइलिन ब्लू के कलर ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਰਫੁਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਆਏ ਮਿਥਾइलिन ब्लू, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਾਤਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਚੂਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਲਰਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚਾਰਕੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਟ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਜੋ ਮਿਥਾइलिन ब्लू है ये एडजोरबेट सीगा तो जो चारकोल सीगा वो एडजोरबेंट हो गया। ठीक है ना, तो मतलब स्याही सोख ली गई, सोखण वाला केड़ा सीगा चारकोल दैट इज एडजोरबेंट।
aqueous solution of a raw sugar, aqueous solution of a raw sugar when passed over beds of animal charcoal become colorless as the coloring substance are absorbed by charcoal। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਖੰਡ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਖੰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਐਨੀਮਲ ਚਾਰਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਐਂਡ ਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜੋ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Then the air become dry in the presence of silica gel because the water molecule get absorbed on the surface of gel। जो एयर है ਉਹ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ, ਗੱਤੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਖਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲਿਆ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਝ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਤੇ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਫ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕਾਰਬਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਲੇ ਦਾ ਚੂਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਕੋਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਚਾਰਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰਫੁਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਕਲਰਫੁਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਸੋਖ ਲਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਆਰਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਕੋਲ ਪਾਊਡਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, AD AB। ठीक है, आगे तो जॉर्प्शन है, अभी लिखा है AD, एडजॉर्प्शन एंड AB, एब्जॉर्प्शन। दोनों के अंदर डिफरेंस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एडजॉर्प्शन जो है AD, एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है, किसी सॉलिड के सरफेस के ऊपर किसी गैस का जमना, ठीक है ना, उसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन। लेकिन किसी सॉलिड के सतह के ऊपर नहीं, उसके अंदर तक किसी गैस का चले जाना, वो है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमेना है, एडजॉर्प्शन जड़ी है ये सरफेस फिनोमेना है। लेकिन एक फिनोमेना है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मीन टू से जब एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, एड एंड एब, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों प्रोसेस जो इकट्ठियां होणगियां उस वेले असीं उसे बोल दिंदे आ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट देखते हैं एब्जॉर्प्शन फेज ते एडजॉर्प्शन फेज। तो एब AB, एब्जॉर्प्शन क्या है, जदों जो एक ग्रीन कलर के जो पार्टिकल है बल्क के अंदर एब्जॉर्ब हो गए, तो ਅਸੀਂ बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन मतलब बल्क के अंदर देखो एब्जॉर्ब नहीं, सरफेस के ऊपर पार्टिकल रहे, तो अभी है एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के अंदर फिजिकल एडजॉर्प्शन, इसको फिजिजॉर्प्शन भी कह रहे हैं, और क्या है, अकोमोडेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय वीक वैंडरबोल्ट फोर्स। गैस का अकोमोडेशन होना है किसी सॉलिड के ऊपर, ओदे अंदर सॉलिड और गैस के अंदर फोर्स कौन सा रहेगा, वीक फोर्स रहे, जिसको बोलेंगे वीक वैंडरवाल्स फोर्स। इस प्रोसेस को बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन। अभी दूसरी टाइप की एडजॉर्प्शन है केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसको केमिजॉर्प्शन भी कह रहे हैं। व्हेन गैस मॉलिक्यूल और एटम्स आर हेल्ड टू सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड केमिजॉर्प्शन। होना तो देखो दोनों सरफेस फिनोमेना है, चाहे फिजिकल एडजॉर्प्शन है चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन है। सेकंड नेम इसका फिजिजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन। तो फिजिजॉर्प्शन है सरफेस फिनोमेना, लेकिन सरफेस के ऊपर गैस का मॉलिक्यूल का वीक वैन डर वाल्स फोर्स के साथ
जुड़ना, ये हो गया फिजिक्स ऑप्शन। लेकिन सरफेस के ऊपर गैस मॉलिक्यूल का केमिकल बॉन्ड के साथ जुड़ना, वो हो गया केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिकल जॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, production of high vacuum from a vessel evacuated by vacuum pump. The remaining traces of air can be absorbed by charcoal to give a very high vacuum gas mask. एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ एड्सॉर्प्शन हो रही है। तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम बनाना है तो एड्सॉर्प्शन का यूज देख रहे हैं। गैस मास्क, जितने भी गैस मास्क है, अभी कोरोना में भी मास्क पहन रहे हैं हम, उसमें भी क्या है, वायरस ने एब्जॉर्ब हो जाना है मास्क के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं जाना। देन कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, जैसे सिलिका और एल्यूमिनियम जेल के छोटे छोटे पाउच शूज के डिब्बे में डाले होते हैं ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लें, ताकि जो प्रोडक्ट है खराब ना हो सके। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटे फ्रॉम सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के अंदर जो अनवांटेड कलर है उसको खत्म करने के लिए भी एड्सॉर्प्शन की जा सकती है एनिमल चारकोल में, जैसे शुगर मिल में शुगर की सफाई में कर रहे हैं। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इट हैज मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस का सेपरेशन। इन क्योरिंग डिजीज, बहुत सी डिजीज का क्योर करना भी एड्सॉर्प्शन में हो रहा है, जर्म्स को किल किया जाता है एड्सॉर्ब करके। देन फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, जो कि 10th क्लास में भी पढ़ा है, सल्फाइड ओर का जो एड्सॉर्प्शन करना है सॉल्यूशन में से। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर, surface of certain precipitates such as silver halide have the property to absorb some dyes like eosin, fluorescein, etc. and hereby producing a characteristic color at the end prime. क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे, क्रोमेटोग्राफी वाले सारे एब्जॉर्प्शन के ऊपर बेस है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो किसी की रिएक्शन के अंदर आप यूज नहीं होगा। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो अपना प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, जस्ट रिएक्शन का स्पीड फास्ट करेगा। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। मतलब क्या है कि मान लो ए कोई केमिकल है, उसके अंदर बी हम मिला रहे हैं, ए और बी को मिलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ए को बी के साथ रिएक्शन करवाने के लिए कोई सी केमिकल हमने थोड़ा सा डाल दिया, तो ए और बी ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया। तो जो सी डाला है उसने फाइनल में अपना प्रोडक्ट नहीं बनाया, सी एज इट ही पीछे रह जाएगा, ए और बी ने ही रिएक्शन करके आगे आके प्रोडक्ट बनाना है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल है जो रिएक्शन में आप तो यूज्ड अप नहीं होएगा, जो आप प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, बट वो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगा, ऐसे केमिकल को बोलेंगे कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी MnO2 कैटलिस्ट फॉलोइंग रिएक्शन, तो क्या करना है, KClO3, तो पोटाशियम क्लोराइड जो है उसको पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में तोड़ना है। लेकिन इसको तोड़ने के लिए जो कैटलिस्ट ये ऐसे एज इट अपने आप नहीं टूटेगा, कोई कैटलिस्ट मिलाना पड़ेगा। MnO2 मिलाया और ये टूट गया, ठीक है ना, ये टूट के दो केमिकल में चेंज हो गया। लेकिन इसने कोई अपना प्रोडक्ट नहीं बनाया कैटलिस्ट ने, देखो फाइनल में जाके जो प्रोडक्ट है वो इस रिएक्टेंट का ही बना, तो इसने जस्ट रिएक्शन को स्पीड अप किया, रिएक्शन करने के लिए हेल्प किया, मदद किया। तो जो केमिकल रिएक्शन करने के लिए स्पीड अप रिएक्शन करने के लिए मदद करेगा, दैट इज कैटलिस्ट। प्रमोटर एंड पॉइजन क्या है? Promoter are substance that enhance the activity of catalyst while poison decrease the activity of catalyst। ऐसे कुछ केमिकल हैं जो कोई केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, उसको प्रमोटर बोलना है। और जो चल रही रिएक्शन को स्टॉप करना है, तो कुछ केमिकल मिलाओ तो रिएक्शन बंद हो जाए, तो ऐसे केमिकल को पॉइजन बोल रहे हैं ना। पॉइजन स्टॉप द रिएक्शन, प्रमोटर इंक्रीज द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हेबर प्रोसेस
में क्या होएगा, अमोनिया बनाना है, तो मोलिब्डियम एक्ट एज प्रमोटर फॉर आयरन विच इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। ओके, तो हेबर प्रोसेस में मोलिब्डियम एक केमिकल है जो कि अमोनिया बनाने में ज्यादा मदद करेगा, तो ये एक प्रमोटर है मोलिब्डियम। ओके, तो होमोजीनियस कैटलिस्ट भी है, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, इनकी टाइप्स है कैटलिस्ट की। होमोजीनियस है व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਸੇਮ ਫੇਸ 'ਚ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਲਿਕੁਇਡ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੈਸ 'ਚ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਮਿਲਾਤਾ, ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਸੋਲਿਡ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ कैटलिस्ट। और इसका उल्ट तो पता ही है, रिएक्शन एग्जांपल दे रखी है एक कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन करना है, दोनों गैस है और कैटलिस्ट भी मिला दिया, नाइट्रस ऑक्साइड NO मिला दिया, ठीक है ना। तो गैस की रिएक्शन करवानी है दो गैसेस की, तो गैस वाला ही कैटलिस्ट यूज कर दिया, तो उसने देखो इन दोनों को जोड़ के ये वाली गैस बना दी। कैटलिस्ट आप तो नहीं यूज हुआ, अपना प्रोडक्ट नहीं बनाया, इसने रिएक्शन करने में हेल्प की है, तो ऐसी रिएक्शन ऐसे कैटलिस्ट को बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट उल्ट होएगा, कैटलिटिक प्रोसेस इन विच अ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर डिफरेंट फेज नॉन एज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, मतलब जो रिएक्शन करने वाले वो तो गैसेस हो गए, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड हो गया, ठीक है ना। जैसे अभी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना है लेकिन प्लेटिनम सॉलिड डाल दिया, तो सॉलिड को ने भी रिएक्शन तो इन्हीं का करवाना, करवा दी रिएक्शन। तो अभी कैटलिस्ट अलग फेज है, रिएक्टेंट अलग फेज है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे हम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, डिफरेंट फेज वाला। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, मैकेनिज्म इन्वॉल्व 5 स्टेप्स। जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं, जैसे कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, adsorption of reactant molecule on the surface of catalyst, occurrence of chemical reaction on the catalyst surface, desorption of reaction product from the catalyst surface, diffusion of reaction products away from the catalyst. Important feature of solid catalyst, solid feature का, the activity of catalyst depend upon the strength of chemisorption to a large extent. The reactant must get absorbed on the catalyst to become active. However, they must not get absorbed so strongly that they are immobilized and other reactants are left with no space on catalyst surface for adsorption. Zeolite a term. Zeolites are good shape selective catalyst. कैटलिस्ट ही होते हैं जियोलाइट, लेकिन ये गुड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर हनीकम लाइक स्ट्रक्चर, देयर माइक्रोपोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट with 3-dimensional network of ALOSI, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन को मिला करके फ्रेमवर्क बना करके हनीकम्ब मतलब मधुमक्खी की छत्ते की तरह का कैटलिस्ट। द reaction taking place in zeolite depends upon the size and shape of reactant and product molecule as well as upon the pores and cavities of zeolites. Enzyme catalysts, complex nitrogenous organic compounds produced by living plant and animal, actually protein molecule of high molecular mass. Numerous reactions that occurs in bodies of animals and plant to maintain the life process are catalyzed by enzyme. The enzymes are thus termed as biochemical catalyst and the phenomena is known as बायोकेमिकल कैटलिस्ट। मतलब बॉडी के अंदर कितनी सारी रिएक्शन है, हमारे पेट के अंदर, हमारे लीवर के अंदर, लंग्स के अंदर, तो कितनी सारी ये बॉडी के अंदर कैटलिस्ट रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कुछ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो वो सारे हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट। एग्जाम्पल फॉर इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर में
जो शुगर ली है वाटर के साथ मॉलिक्यूल का रिएक्शन करके कैटलिस्ट यूज किया और रिएक्शन को करके ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बना दिए, ठीक है ना, शुगर से ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बना दिए। तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज भी हो सकता है। तो मतलब जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जाइमेज से मिलके इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना देगा। तो मतलब है तो वही केमिकल है। तो फ्रुक्टोज लिया या शुगर लिया, शुगर को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया और एक छोटा मॉलिक्यूल है जाइमस से मिलके इस मॉलिक्यूल की कंपोजिशन ही चेंज करके अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया। Characteristics of enzyme catalyst: most highly efficient, highly specific nature, high active under optimum temperature, high active under optimum pH, 5 से 7 pH के ऊपर कैटलिस्ट अच्छा काम करेंगे और 298 से 310 केल्विन तक इस टेम्परेचर के ऊपर अच्छा काम करेंगे कैटलिस्ट। Increasing activity in the presence of activator and coenzyme. The enzymatic activity is increased in the presence of non-protein vitamin known as coenzyme. Activators are generally metal ions such as sodium, magnesium, cobalt, and copper. These metal ions, when weakly bonded to enzyme molecule, increase their catalytic activity. Amylase in presence of sodium chloride, that is sodium positive ion, are catalytically very active. Last topic is colloids. Mixture. 3 तरह ਦੇ स्पेसिमन ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਓਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲਾइड्स ਥੋੜਾ ਸਾ ਧੁੰਦਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾइड बोल ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਸਪੈਂਡਡ ਹੈ। पार्टिकल ऑफ मिक्सचर, अगर पार्टिकल का साइज 10⁻⁷ सेंटीमीटर है या 10⁻⁷ तो 10⁻⁻5 तक, और पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा है। जो ट्रू सोल्यूशन है उसके अंदर जो क्लियरिटी इसलिए दिखाई दे रही है कि उसके अंदर जो पार्टिकल डिसॉल्व हुए हैं वो ट्रू सोल्यूशन को बनाने के लिए पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो कोलाइडल बनेगा, ट्रू सोल्यूशन नहीं बनेगा, लेकिन और बड़ा साइज हो गया तो सस्पेंशन। पार्टिकल का साइज लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन, कोलाइड्स एंड सॉल्यूशंस। पार्टिकल साइज इतना रहेगा तो सस्पेंशन कोलाइड के लिए पार्टिकल साइज और सॉल्यूशन के लिए 1 नैनोमीटर का साइज। इसको ये काफी देर तक सॉल्यूशन के पार्टिकल रखे रखो तो ये सेटल डाउन नहीं होंगे, नीचे नहीं बैठेंगे। कोलाइडल के पार्टिकल सेटल ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर इसको सेंट्रीफ्यूगेट बहुत तेजी से घुमाया जाए तो ये जम जाएंगे। तो सस्पेंशन को काफी देर पड़ा रहने दो तो इसके जो पार्टिकल है नीचे अपने आप बैठ जाएंगे, ठीक है ना, बड़े पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। सॉल्यूशन क्लियर दिखाई देगा, कोलाइडल जनरली क्लियर है, थोड़ा सा धुंधलापन है, लेकिन जो सस्पेंशन है वो ओपेक है, बहुत ज्यादा गंदलापन है। ब्राउनियन मोमेंट बिल्कुल नॉट ऑब्जर्व, सॉल्यूशन के अंदर तो नहीं होगी क्योंकि पार्टिकल बिल्कुल डिसॉल्व हो गए हैं। कोलाइडल के अंदर और सस्पेंशन के अंदर जिनके अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड है, तैर रही है, तो वहां पर ब्राउनियन मोमेंट भी होगी और टेंडल इफेक्ट भी होगा। ये ब्राउनियन मोमेंट एंड टेंडल इफेक्ट है पार्टिकल के ऊपर फिनोमिना है। ब्राउनियन मोमेंट एक दूसरे, जो पार्टिकल सस्पेंडेड है तैर रहे एक दूसरे से टकरा के जिग जैग मोशन में इधर उधर घूम रहे हैं तो वो ब्राउनियन मूवमेंट कर रहे हैं। टेंडल इफेक्ट, अगर लाइट को हम फॉल करें सस्पेंशन के ऊपर तो लाइट के जो पार्टिकल है सस्पेंडेड पार्टिकल जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे वो टेंडल इफेक्ट देंगे, ठीक है ना। तो कोलाइडल और सस्पेंशन तो टेंडल इफेक्ट देंगे और ब्राउनियन मूवमेंट भी देंगे, लेकिन सोल्यूशन वाला इसके अंदर नो ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग कोलाइड बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है अपना, लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड, फिलिक लविंग, फोबिक जो डरने वाले हों, ठीक है ना, फोबिया, फोबिया डरपोक। लायोफिलिक
तो कोलाइड इन विच देयर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जो फेज दो तरह के पार्टिकल है जिसका सोल्यूशन बनाना है, सॉल्वेंट एंड सल्यूट पार्टिकल है ना, सॉल्वेंट एंड सल्यूट पार्टिकल अभी बोलना शुरू कर दिया। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जो सॉल्वेंट है उसको डिस्पर्शन मीडियम, जो सल्यूट है उसको डिस्पर्स्ड फेज बोल दिया, ठीक है ना। दोनों के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ, वो खिंचे आ रहे हैं, तो वो लायोफिलिक कोलाइड बनाएंगे, ठीक है। लेकिन लायोफोबिक अगर अट्रैक्शन नहीं है डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम के अंदर, तो वो बनाएंगे लायो